धंधा पानी मंदा चल रहा है। अभी कोरोना का महामारी से हम लोग जिस टाइम लॉकडाउन में थे, दीदी 10,000 2,000 रुपया भी दिया। उसका पहले अगर कोई होकर का पास पैसा नहीं था तो 10,000 रुपया एक्स्ट्रा दिया पूंजी लगाने के लिए। दीदी को माने चाहिए कि आ रहा है दीदी, चाहिए नहीं आ रहा है दीदी। बीजेपी को हम क्या, कोई पूरा बंगाल का आदमी नहीं चाहता है। वो बंगला क्या, सोनार बंगला को लूट करके चल जाएगा। जब से बीजेपी सरकार आया है पूरे बिजनेस का कहानी खत्म हो गया है। जीएसटी से नुकसान ये है कि छोटे छोटे व्यापारी जो है ना वो आना बंद हो गया। कलकत्ता एक्चुअली क्या बहुत बड़ा हब था, मतलब मटिया ब्रूज, मंगला हाट, ये सब जो बिजनेस का प्लेस था, तो जो छोटे छोटे लोग डर से नहीं आता कि जीएसटी से माल परचेज नहीं कर सके, उन लोगों का जीएसटी नंबर है नहीं तो लोग परचेज नहीं कर रहा। तो क्या इससे फ़ायदा बड़े बड़े लोगों को होगा, जो मर्चेंट लोग हैं, जिसके पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, जिसके पास पैसा का बहुत भंडार है, उन लोगों को फ़ायदा हुआ। बाकी छोटे छोटे लोग एक्चुअली इस हमारे देश में तो बहुत सारे लोग जो है गरीब लोग हैं, तो गरीबी की वजह से मतलब उन लोगों को बहुत नुकसान हो गया जीएसटी की वजह से। लॉकडाउन लगा उसके बाद थोड़ा सा ये हुआ ना, आपका बिजनेस साइड से डाउनफॉल हुआ है पहले से, है ना। तो अभी इसके खुलने के बाद तो आहिस्ते आहिस्ते इम्प्रूव हो रहा है, लाइन पे आ रहा है। अगर इनकेस अगर फिर से लॉकडाउन होता है तो बिज़नेस संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर बीजेपी आता है तो ये सहूलत नहीं मिल पाएगा। जैसे कि अदर जगह पे कितना दंगा हो रहा है यूपी वगैरह पे, यहाँ पे सुकून है, जहाँ पे हम लोग ममता का सरकार ही चाहिए। अब ममता ही उम्मीद है यहाँ पे जीतेगी। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন টিডিএন বাংলা। আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি ধর্মতলার নিউ মার্কেটের যে সমস্ত ছোট ছোট কাপড়ের দোকান আছে, সেই সমস্ত কাপড়ের দোকান, সেই সাথে আরও যে সমস্ত দোকান আছে সেই দোকানের ব্যবসায়ীরা কেমনভাবে তাদের ব্যবসা চলছে। প্রথমে করোনার জন্য লকডাউন, তারপর এখন ইলেকশন, তো সেই তার মধ্যে দিয়েও তাদের ব্যবসা কেমন হচ্ছে সেই বিষয়ে জেনে নেব। আপনার নাম কি? আমার নাম গৌতম। বলেন। আপনি কি করেন? আমি হকারিগিরি করি। হকারি করেন। আপনার কেমন চলছে? এখন বাজার পরিস্থিতি খুবই খারাপ চলছে বর্তমান পরিস্থিতি। কেন? ধরুন এক ইলেকশন, হ্যাঁ, সেকেন্ড আপনার করোনা অভাব, এই পড়েছে, এর জন্য বাজারের অবস্থা খুবই খারাপ চলছে। কেনা বেচা খুব কম চলছে, যেভাবে টুকটাক করে চলে যাচ্ছে। শুধু কি করোনা বা লকডাউনের জন্য বা ইলেকশন? প্লাস আপনার ইলেকশন আছে, হ্যাঁ, সেই সাথে জিএসটির প্রভাব পড়েছে। জিএসটির প্রভাবটা পড়েনি, মানে পাবলিক রাস্তায় বেরোচ্ছে না, ভয়। এবার শুনছে, পাবলিক মুখে শুনছে ইলেকশন হয়ে যাবে, আপনার লকডাউন হয়ে যাবে, পাবলিক ভয় বেরোচ্ছে না। পাবলিক কাছে পয়সা নেই পকেটে, কী কিনবে পাবলিক? ব্যবসা কি আগে যেরকম আগে কতটা বিক্রি হচ্ছে? আগের থেকে অনেক কমে গেছে লকডাউনে। আপনার আগের বছরে 2020-তে যেরকম ছিল মার্চ মাসের আগে, জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি, তার থেকে অনেক ডাউন হয়ে গেছে। অ্যাডমিশন, স্কুলের অ্যাডমিশন দিতে লোকের চলে যাচ্ছে, পকেটে পয়সা নেই। আগে জামাও কিনবে না, আগে ছেলে মেয়েদের স্কুলে অ্যাডমিশন দেবে, এটা বলো তো। সরকার আপনাদের কেমন সাহায্য করছে লকডাউনের ভিতরে? লকডাউন সরকার আমাদের মোটামুটি ঠিকই সাহায্য করেছে। বেঙ্গল গভর্নমেন্ট সরকার সাহায্য করেছে। রাজ্য সরকার না কেন্দ্র সরকার? রাজ্য সরকার। কেন্দ্র সরকারের কোনো সহায়তা পেয়েছেন আপনারা? কেন্দ্র সরকার এখন সাহায্য আমরা পাইনি করোনার ভিতরে। আপনারা কি চান? আমরা চাই সুস্থ পরিবেশ ভালো করে, সেই আগের মতন আমরা জীবিকা বা কেনাকাটা করতে পারি, জীবিকা অর্জন করতে পারি। ইলেকশনের ব্যাপারে আপনি কিছু বলবেন? ইলেকশনে হওয়া কোন দিকে যাবে দাদা বলতে পারছি। আপনি কাকে চাইছেন? হ্যাঁ, আমি কাকে চাইবো? আমি চাইলে কি হবে? জনসাধারণ যা চাইবে, যাকে বসাবে সেই হবে। আমি আমার ব্যক্তিগত যা পার্টি করি সেটা তো এখন আসবে না। আপনি কি পার্টি করেন? আমি লাল ঝান্ডা কাড়ে পোকার ইনকলাব जिंदाबाद। अच्छा, एमडी कासिम क्या करते हैं? फुटपाथ पे शॉप लगाते हैं हम लोग। तो कैसे चल रहा है आपका धंधा पानी मंदा चल रहा है। अभी कोरोना का महामारी से अभी जो है सो हम लोग को दीदी बहुत अच्छा काम किया है। और बहुत हम लोग जिस टाइम लॉकडाउन में थे, दीदी 10,000 2,000 रुपया भी दिया। उसका पहले अगर कोई होकर का पास पैसा नहीं था तो 10,000 रुपया एक्स्ट्रा दिया पूंजी लगाने के लिए। यहाँ पर दिए आप लोगों को? क्या बोले? होकर को दिया है पैसा? हाँ, होकर को दिया है। हर होकर को 2-2 हज़ार रुपया दिया। जितना गरीब लोग होकर लोग सबको 2-2 हज़ार रुपया दिया टोटल होकर को। तो हम लोग को खुद मिला है। गरीब के लिए दीदी बहुत बेस्ट। अच्छा, तो दीदी को चाहिए क्या? एकदम दीदी को माने चाहिए कि आ रहा है दीदी, चाहिए नहीं आ रहा है दीदी। वो क्या किया यहाँ पर आकर के सिर्फ हिंदू मुस्लिम जय श्री राम, तो ये हम लोग सब हिंदू मुस्लिम एक साथ बैठ के खाना पीना रहना सहना है। सिर्फ मुस्लिम है हिंदू तो नहीं है, सब हम लोग मिल के है, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है हम लोग। बिजनेस भी एक साथ में करते? एक साथ कोई यहाँ पे दंगाबाजी नहीं है। ये अभी तो आकर के जब से ये आया हुआ है
हिंदू मुस्लिम जय श्री राम तो ये राम वो राम फालतू कोई टेंशन। हम लोग का यहाँ बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। दीदी मेरा यहाँ क्या 100 का 110% आ रहा है। अभी 60 सीट का इलेक्शन हुआ, 60 सीट में समझ लिए कि 56 सीट मेरा दीदी का है, बाकी 4 सीट जो है सो लेफ्ट पार्टी कांग्रेस का है। लेकिन बीजेपी तो भी बोल रहे हैं ना बहुत कुछ देंगे। बीजेपी बोलने से क्या होगा, वो तो बहुत कुछ बोलता है। नहीं, वो भी तो बोल रहे हैं बहुत कुछ देंगे, सोनार बंगला बनाएंगे। वो बंगला क्या, सोनार बंगला क्या, सोनार बंगला को लूट करके चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। आप उसको सोनार को सोना दिया तो पायल बना दिया, लोहार को हथौड़ा दिया, लोहार को लोहा दिया तो हथौड़ा बना दिया, समझे ना। तो आप बीजेपी को नहीं चाहते? बीजेपी को हम क्या, कोई पूरा बंगाल का आदमी नहीं चाहता है। अच्छा, पूरा देश का पूरा बंगाल का आदमी नहीं चाहता, पूरा देश का आदमी। आज देखिए किसान का हालत क्या हो रहा है दिल्ली में, उसका बारे तो कुछ नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, उसका तो कोई बात ही नहीं हो रहा है कि किसान मर रहा है, गरीब मर रहा है। चलिए, क्या लेकिन करना आपका है? बिजनेस का क्या नुकसान है, थोड़ा ये बोलिए सर। बिजनेस का नुकसान नहीं, बिजनेस हम लोग का ठीक है, अभी चल रहा है। अच्छा, तो वो बिजनेस ठीक है गरम ना? तो होता है। नरम गरम तो होता है, बहुत अच्छा है, चल रहा है, जो भी अच्छा है। मेरा नाम मंजर है। हम तो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं कपड़े का। क्या बिजनेस? बिजनेस तो बहुत मंदा है अभी। गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसी है, जैसे है जीएसटी है। जीएसटी से आपका क्या नुकसान है? जीएसटी से नुकसान ये है कि छोटे छोटे व्यापारी जो है ना, जो छोटे छोटे व्यापारी है, एक्चुअली व्यापार जो है ना छोटे छोटे लोगों से होता है, और छोटे छोटे व्यापारी जो है ना, छोटे छोटे जो व्यापारी है वो आना बंद हो गया। कलकत्ता एक्चुअली का बहुत बड़ा हब था, मतलब मटिया ब्रूज, मंगला हाट, ये सब जो बिज़नेस का प्लेस था। तो जो छोटे छोटे लोग डर से नहीं आता कि जीएसटी से माल परचेज़ नहीं कर सके, उन लोगों का जीएसटी नंबर है नहीं, तो उन लोग परचेज़ नहीं कर रहा। तो क्या इससे फ़ायदा बड़े बड़े लोगों को होगा, जो मर्चेंट लोग हैं, जिसके पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, जिसके पास पैसा का बहुत भंडार है, उन लोगों को फ़ायदा हुआ। बाकी छोटे छोटे लोग एक्चुअली इस हमारे देश में तो बहुत सारे लोग जो है गरीब लोग हैं, तो गरीब लोग गरीबी की वजह से मतलब उन लोगों को बहुत नुकसान हो गया जीएसटी की वजह से। बड़े लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ, अनलिमिटेड फ़ायदा हुआ, और गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा हुआ, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा हुआ। अभी ये क्या सब, ये जो अभी ऑनलाइन का बिज़नेस है, इससे भी व्यापार बहुत जो मर्चेंट लोग हैं, जो बढ़िया बढ़िया लोग हैं, जिसके पास मतलब साधन है पैसे का और मैन पावर है, और आप टेक्नोलॉजी को फ़ायदा उठा रहा है, तो लोग बड़े बढ़िया बिज़नेस कर रहा है। तो जीएसटी से मतलब मिडिल जो वर्ग का जो बिजनेसमैन है उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं हुआ है? नहीं, वो जीएसटी से जो छोटे लोग हैं, स्मॉल लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। उन लोगों को एक्चुअली उन लोगों के लिए फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग डर गया कि भाई जीएसटी से जो एक्चुअली क्या सिर्फ बंगाल का नहीं, बंगाल जो हब है वो झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, असम, और मतलब और जो मतलब आसपास का एरिया है, उन लोगों से परचेज करने के लिए आता था। ये मतलब बहुत ज़बरदस्त बिजनेस। आप ये देखिए कि 16,000 करोड़ रुपये टैक्स आता था, मान लीजिए थोड़ा मटिया ब्रूज के अंदर में, तो अभी वो टैक्स कम आना स्टार्ट हुआ है। थोड़ा सा एक्चुअली कोरोना की वजह से भी व्यापार थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। कोविड-19 के वजह से बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा हैम्पर किया है। इस कलकत्ता एक्चुअली बिजनेसमैन की जगह है, छोटे से छोटे बड़े से बड़े। लेमन जूस बेचने वाला भी बिजनेसमैन है, समझ लो, व्यापारी ही है, और बड़े से बड़े हैं। और ये जितना यहाँ पे डाला लगा फुटपाथ में सारे बिजनेस है, बिजनेस ही करते हैं लोग। तो क्या इसका कुछ असर जो है मतलब अब इन लोगों को पता है, जो रौनक था अभी, जो पहला बैसाख का टाइम है, अभी यहाँ पे सेल का बाजार रहता है, ज़बरदस्त बाजार, रस काफ़ी रहता है, चलने का जगह नहीं, मैं स्कूटी यहाँ पे खड़ा नहीं कर सकता था। तो अभी आप देखो, अब सन्नाटा है। ये मतलब समझ लो कि कलकत्ता का हार्ट प्लेस है बिज़नेस का, जो सारे मतलब दूर दूर से लोग आते हैं परचेज़ करने के लिए। यहाँ पे चीप एंड बेस्ट में बढ़िया माल मिलता है, मतलब सभी को मतलब कपड़ा मिल जाता है हर रेंज का। तो अभी आप रस देख रहे हो कहीं पे, ये भैया पहला बैसाख का टाइम है, ये सिचुएशन कैसा है बाज़ार का, काफ़ी मंदा है। और एक इलेक्शन भी चल रही है यहाँ पे। अब इलेक्शन में क्या ना, कॉमनल फीलिंग भी ज़्यादा हो गया, इससे लोग जो अब आना जाना भी नहीं कम कर रहा है, जो कॉमनल फीलिंग है। तो ये आदमी उस डर की वजह से भी नहीं आ पा रहा है। जो आप जितना लोग ट्रैवलिंग करता था, जितना वो बाहर पहले लोग आते थे, उतना नहीं आ रहा है। असर पड़ेगा? देखिए, बंगाल का असर क्या ना, एक्चुअली अभी पॉलिटिक्स ऐसा हो गया ना कि तो विपक्ष में बीजेपी है और में तो टीएमसी है। सबका असर पड़ेगा? एक्चुअली ममता ने बेहतरीन काम किया है, लोगों के लिए भलाई के लिए किया है। जहाँ तक मैं देखा, मैं तो काफ़ी ट्रैवलिंग करता हूँ लोकल बंगाल में, तो ममता ने बहुत बेहतरीन काम किया है, इसमें कोई शक वाला बात नहीं है।
तो बिजनेस सोसाइटी के लिए क्या है? बिजनेस सोसाइटी के लिए ममता ने कोई ज़्यादा टॉर्चर नहीं किया। बिजनेसमैन छोटे हो या बड़े हो, उनको तो टॉर्चर नहीं किया है। एक्चुअली के जो बिजनेस हैम्पर कर रहा हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी की वजह से कर रहा। इसमें ममता का कोई रोल नहीं है। जीएसटी है, SGST जो है वो तो उसको तो सेंट्रल गवर्नमेंट के उस सबसे फ्लो कर रही है वो। लेकिन बिजनेस क्लास जो है इस बार किसको समर्थन कर सकते हैं? आपको क्या लग रहा है? जैसा आप एक बिजनेसमैन जितने जो छोटे छोटे व्यापारी लोग, जितने छोटे छोटे व्यापारी है सारा टीएमसी को सपोर्ट कर रहे हैं टोटल। मतलब जो बड़े लोग हैं, अब जो कॉमनल फीलिंग के लोग हैं, अब उसमें तो कुछ बता नहीं सकते हैं कि भाई वो किसको सपोर्ट करे, अब किसी का दिल है। लेकिन क्या रुझान जो है, और एक गोदी मीडिया है, देखिए गोदी मीडिया जो है क्या वो तो बीजेपी के सपोर्टेड है। अब उसको देख करके आदमी तो अब परसेप्शन बना लेता तो एक अलग मैटर है। लेकिन मेरा जहाँ तक नॉलेज है, जहाँ तक अपना एक रिसर्च करते हैं तो समझ रहे हैं कि बंगाल में ममता फिर रिटर्न आ रही है। आपका नाम क्या है? शुजा शब्बीर अख्तर। क्या करते हैं आप? जी मेरा श्री राम मार्केट में शॉप है। कौन सा चीज़ का शॉप है? गारमेंट्स का, लेडीज़ कैसा चल रहा है? बाज़ार तो बिल्कुल बहुत ख़राब है। और चाइना से हम लोग का जो इम्पोर्ट कपड़ा आता था वो उसकी वजह से कपड़ा आ नहीं पा रहा अभी लॉकडाउन की वजह से, इस कारण से कोरोना का लेके इस वजह से हम लोग का थोड़ा सा बाज़ार बहुत डाउन है। और कपड़ा का चाइना का जो मार्केट है वहाँ पे भी कपड़ा का रेट बहुत बढ़ गया है, तो इस वजह से कस्टमर और भी नहीं आ रहे हैं। अब कुछ कस्टमर के पास जो मतलब इनकम होता है वो इनकम भी नहीं है अभी, इस वजह ड्यूटी लगा दिया जाता है। गवर्नमेंट ड्यूटी भी ज़्यादा लग चुका है, इसलिए अभी हम लोग का थोड़ा सा सेल डाउन चल रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। क्या करते हैं? मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है। बिजनेस की क्या हाल है? अभी जो लॉकडाउन हुआ है उसके बाद जो कोरोना की ये हुआ उसमें क्या? तो देखिए मतलब लॉकडाउन हुआ उसके बाद तो मतलब जितना भी बिज़नेस का लाइन है, मतलब गारमेंट्स का ही नहीं है, अदरवाइज़ जो भी बिज़नेस था सारा तो पहले से भी डाउन है। तो अभी जो लॉकडाउन खुला है तो उसके बाद थोड़े बहुत मतलब अभी फिर से मतलब जगह पे आ रहा है, मतलब पहले से मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत पहले से ठीक हुआ है। तो इस बार जो इलेक्शन चल रहा है उसमें क्या मतलब है? अब क्या राय है? अभी इलेक्शन जो चल रहा है यहाँ पे अभी जैसे कि यहाँ पे अभी ममता का सरकार है यहाँ पे, तो उस हिसाब से यहाँ पे ठीक है। अदरवाइज़ हम मतलब मैक्सिमम स्टेट घूमते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उस चक्कर में हमको सारी जगह जाना पड़ता है। दिल्ली भी जाते हैं, मुंबई भी, फिर आपका पंजाब भी जाते हैं, अहमदाबाद वगैरह भी अपना जाना होता है। मगर हम जितना भी स्टेट घूमे मैक्सिमम स्टेट, तो हमको सबसे अच्छा यहीं पे लगा है। यहाँ पे बिजनेस का हालत सही है। आप दिन में भी आदमी काम कर रहा है, रात में भी आदमी अपना आराम से घूम पा रहा है, ठीक से रह पा रहा है ममता की सरकार में। अदरवाइज़ अगर बीजेपी आता है तो ये सहूलत नहीं मिल पाएगा। जैसे कि अदर जगह पे कितना दंगा हो रहा है यूपी वगैरह पे, यहाँ पे सुकून है। यहाँ पे हम लोग ममता का सरकार ही चाहिए, अब ममता ही उम्मीद है यहाँ पे जीतेगी। बिजनेस की बात बताइए आप, बिजनेस में क्या मतलब आपको अब इसका प्रॉब्लम हो रहा है क्या? बिजनेस में भी क्या कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब जो लॉकडाउन लगा उसके बाद थोड़ा सा ये हुआ ना, आपका बिजनेस साइड से डाउनफॉल हुआ है पहले से, है ना। तो अभी इसके खुलने के बाद तो आहिस्ते आहिस्ते इम्प्रूव हो रहा है, लाइन पे आ रहा है। अगर इनकेस अगर फिर से लॉकडाउन होता है तो बिज़नेस संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप बोले कि हम दूसरे जगह पे, दूसरे स्टेट पे, हाँ दूसरे स्टेट पे भी जाते हैं हम। तो हमको बिजनेस के लिए बंगाल अच्छा है। हाँ बंगाल बेस्ट लगा, इसलिए कि मतलब अदरवाइज़ वहाँ पे जाते हैं, जैसे कि आपका मुंबई में लॉकडाउन है शाम 7 से सुबह 7 तक के, तो बहुत से क्या यहाँ पे देखो अभी 7 बजे, आपका अभी कितना 8 बज गया होगा, है ना। देखो 8 बज गया, देखो दुकान खुला हुआ है, वहाँ पे टाइम से पहले बंद हो जा रहा, या फिर ट्रैफिक वगैरह ये वो 10 तरीके की बात है। मगर यहाँ पे क्या हम लोग को बहुत पीसफुल है, सुकून है, तो उस हिसाब से हमको यहाँ पे ये बेस्ट लगता है बिज़नेस के लिए। और हम प्लस यहीं से बिलोंग भी करते हैं, तो उस हिसाब से। जो मोदी सरकार का जो GST आया, जी, जो नोटबंदी हुआ, नोटबंदी के बाद से तो बहुत फ़ायदा हुआ ना नुकसान क्या हुआ? नहीं, GST के बाद से भी देखिए, नोटबंदी के बाद से तो आधा बिजनेस ख़त्म हो गया, ठीक है। और जो बिज़नेस थोड़ा बचा था आपका लॉकडाउन के बाद चला गया। अब GST से भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है। जैसे कि हम लोग जीन्स का जो मेरा ट्रेडिंग होता है उसमें हम लोग परचेज़ करते हैं GST में, बट अगर कस्टमर को हम लोग GST में सेल करना चाहते तो वो लोग लेना नहीं चाहते, कच्चे में माल चाहिए। बट हम लोग तो GST पे करके उठा रहे हैं, टैक्स पे करना पड़ रहा है जगह जगह, तो इससे थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असगर खान। क्या करते हैं आप?
काम करता है यहाँ पे काम करता है दोस्त। कौन सा चीज़ का काम है? वही मोबाइल कवर में कैसा चल रहा है बिजनेस? बिजनेस एकदम ठप है। जब से बीजेपी सरकार आया है पूरे बिजनेस का कहानी ख़त्म हो गया है। इलेक्शन लेके हम लोग को बहुत प्रॉब्लम है, जल्द से जल्द इलेक्शन ख़त्म हो जाए। क्या मतलब क्यों प्रॉब्लम हो रहा है आपको? प्रॉब्लम क्या हो रहा है, नंदीग्राम में गली मार रहा है दीदी का पार्टी को 3 मील। नहीं, लेकिन आपका क्या प्रॉब्लम हो रहा है? मेरा मतलब प्रॉब्लम ये हो रहा है, दीदी जहाँ था वहीं रहना चाहिए, दीदी को फिर से आना चाहिए। दीदी आना? हम लोग के लिए खास है। क्यों खास है? दीदी हम लोग का दिल का बात सुनता है। गरीब को कौन देखता है, दीदी देखता है। मोदी तो वहाँ बैठा हुआ रहता है, कोलकाता में आया कभी पूछा हम लोग से, कहता है ओ खाली बोलेगा दीदी 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 बोलने से चलेगा, दादा को भी देखने होगा। लेकिन क्या मतलब आपके लिए दीदी क्या किया? हमारे लिए दीदी बहुत किया, हम लोग को बच्चे लोग का फ्यूचर दिया, स्कूल पढ़ा रहा है, राशन पानी सब मिल रहा है। मोदी ने क्या दिया हमको? लेकिन आपका बिजनेस के लिए क्या हुआ? मेरे क्या दिया? बिजनेस के लिए नहीं दिया। इतना तो बदमाशी तो नहीं होता था, झगड़ा लड़ाई तो नहीं होता था, इतना बड़ा बड़ा हिंदू मुसलमान में से बात तो नहीं होता था, जैसे का वैसे ही चलता था। इसका आने से तो खाली हिंदू मुसलमान का बात होता है, खाली जय श्री राम का राना, इसको जय श्री राम ये सब खाली बोलने पड़ता है। क्यों? अच्छा चलिए, समाज तो है, सब जीएसटी समाज है, ऐसे आप लगे। ये बताइए, जीएसटी और जो डिमोनेटाइजेशन हुआ इसमें क्या आपका फ़ायदा हुआ? जीएसटी है उसका कोई फ़ायदा नहीं है दोस्त, ठीक है। वो जैसा जैसा हुआ है वैसे ठीक है, इसमें कोई हम लोग को बोलना नहीं है।